ओके हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। आज भी हम यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, लेकिन फटाफट से कहेंगे। रात के 11 बज चुके हैं, ये वीडियो हमें अपलोड भी करनी है, तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट फाइनल कट ऑफ दिसंबर 2025 साइकिल कैटेगরি জেআরএফ নেট অনলি পিএইচডি আনরিজার্ভড ক্যাটাগরি। প্রথমেই আমরা বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে। তো এখানে থাকছে আনরিজার্ভড ক্যাটাগরি 186 মার্কস। আর সেটা কতটা প্রশ্ন ঠিক করতে হবে? 93 কত পার্সেন্টেজ দাঁড়াচ্ছে? 62। কতজন ক্যান্ডিডেট পেয়েছে? 144। এরমভাবেই শুধু নেটকে পেয়ে 164 নাম্বার, 82টা কোয়েশ্চেন ঠিক হবে। এটা কোয়েশ্চেন হবে, সরি, এটা মার্কস লিখে ফেলেছি। 82টা কোয়েশ্চেন হবে, আর 54.67%। পিএইচডি অনলি পিএইচডি 146 মার্কস, 73 কোয়েশ্চেন ঠিক করতে হবে, 48.67%। এইভাবে করে করে আমরা ওবিসি, এনসিএল এবং ইডব্লিউএস, এসসি, তারপর এসটি, তারপর পিডব্লিউডি, V1 UR একটা ক্যাটাগরি নিয়েছি। তো আমার এইবারের যে এক্সপেক্টেড কাট অফ, আমি শুধু এই কাট অফটা 58 বলেছিলাম, সেটা 57.33 ঠিক হয়েছে। এটা একটু হয়নি, এটা আমি 36.66 কিছু বলেছি, এটা 35 এটা লেগেছে, বাকিগুলো লাগেনি। আর যেগুলো আমি এগুলো যে বিষয়ে এক্সপেক্টেড আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম, মানে এই যে ডিসেম্বর 2025 সাইকেলটা, সেটা আমারটা একদমই ঠিক হয়নি। কারণ আমি কমপক্ষে 4 থেকে 6%, না 2 থেকে 6% বেশি বলে ফেলেছি, যেটা একদমই একটু বেশি হয়ে গেছে। 1-2 ঠিক হয়, কিন্তু 4-5 যখন পার হয়ে যায়, তখন আর সেটা বলা যায় না যে ঠিক আছে। যাই হোক, তো আমি এটা কেন দিলাম? সবার মাথায় এই আইডিয়াটা পরিষ্কার থাকতেই হবে যে কতটা প্রশ্ন ঠিক করলে কত মার্কস হচ্ছে আর কত পার্সেন্টেজ দাঁড়াচ্ছে। নেক্সট পরীক্ষায় যতই আমাদের পরীক্ষার রেজাল্টে আমাদের মার্কশিটে কিন্তু পার্সেন্টাইল দেওয়া থাকবে, কত পার্সেন্টাইল পেয়েছো সেটার ক্যালকুলেশন আলাদা। কিন্তু যখন টোটাল মার্কস দেয়, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা পার্সেন্টেজ বের করে নিতে পারি, আর কতগুলো প্রশ্ন ঠিক করা হয়েছে সেটাও বেরিয়ে আসে। এটা নিয়ে কেন ভিডিও বানালাম? আজকে গেট এক্সাম ছিল, হয়ে গেছে। আমি কথা দিচ্ছি যে আমি গেট এক্সাম এই বছরের কোয়েশ্চেন পেপার আনসার কি রিলিজ হওয়ার পর আমি নিশ্চয়ই ওই পেপারটা নিয়ে আলোচনা করব। কোয়েশ্চেন পেপার কেমন ছিল না ছিল সেটা নিয়ে আলোচনা করবো। আর যে গ্যাপগুলো আমাদের রয়ে গেল 2025-এ, সেগুলো আমরা 2026-এ নিশ্চয়ই পূরণ করব। মুখে নয়, কাজে অবশ্যই। তো বলতে হবে, বলে গিয়ে তবে আমরা কাজটা করব। তো এখানে এগুলো কেন দিলাম? এগুলো আমি দিলাম যে তোমাদেরকে নিজে থেকে পরিশ্রম করে করার দরকার নেই। যে কয়েকটা ক্যাটাগরি আমরা মূলত সবসময় একটু থাকে, আর তার মানে এই নয় যে এই ক্যাটাগরিগুলোই শুধু গুরুত্বপূর্ণ। বাদ বাকি যতগুলো ক্যাটাগরি আছে আর যতগুলো সাবজেক্ট আছে ইউজিসি নেট এবং আদার্স যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামে, প্রত্যেককেই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনো কম বেশি বলে কিছু হয় না, সবার গুরুত্ব আছে, সমান গুরুত্ব আছে। তো এই অবধি থাকছে। আমি এগুলো এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করব। তো নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যান, বা যুক্ত হয়ে যাও। এই ধরনের ভিডিও পেতে গেলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতেই হবে। আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতেই হবে, যাতে আমরা ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে নিয়ে আসতে পারি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শুভরাत्रि। मुझे आप लोगों को ये कहनी है कि मैं इसको बना के रखी थी 2 दिन पहले, आज लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मुझे ये कहने, ये मैं परिश्रम करके लाई हूँ ताकि आप लोगों को परिश्रम करके ये सारी चीज़ें निकालनी ना पड़े, और आप यहाँ से फटाक से देख के अपने अगले तैयारी के साथ ये सारी चीज़ें दिमाग में रखोगे और आपको आइडिया लग जाएंगे। अगर आप भूल भी जाओगे तो इस वीडियो में आके आप देख पाओगे। आज के वीडियो का स्पेशल टॉपिक ये है यूजीसी नेट फाइनल कट ऑफ दिसंबर 2025 साइकिल के इंग्लिश के सब्जेक्ट टू 30 है, और ये मैंने 5 को बना के रखी थी, और आज है 7। तो मैं ये क्यों बनाई? कैटेगरी जेआरएफ नेट ओनली पीएचडी यूआर और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के 186 मार्क्स हुए हैं, और उसके लिए आपको 93 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और 62% हो रहा है। इसी तरीके से मैंने ओनली नेट ओनली पीएचडी वाले भी लेकर आई हूँ, और टोटल लॉन्ग ऑफ कैंडिडेट भी मैं यहाँ पे दे चुकी हूँ। गलती से यहाँ पे 82 मार्क्स लिख दी मैंने, ये मार्क्स नहीं, ये क्वेश्चंस होंगे। अदरवाइज बाकी सारे मैंने क्वेश्चंस लिख दी, इस जगह पे गलती से मार्क्स हो गए। अब इसको ठीक कर लेना अपने एंड से, और मेरे सामने पेन नहीं है, होती तो मैं ठीक कर देती। सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक, ये होते हैं इतनी सारी चीज़ें करने के वक्त। और ये अनरिजर्व कैटेगरी के, फिर ओबीसी, एनसीएल के, ईडब्ल्यूएस के, एससी के, एसटी के, पीडब्ल्यूडी, V1 UR के। मेरी इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने इसको 58 कहा, और ये 57.33 लगभग, ये ठीक है। मैंने इसको 36.66 कहा, ये 35.33 है, ये लगभग ठीक है, लेकिन ये गलत है। लेकिन बाकी जितने हैं, मैं इस बार के मेरी प्रेडिक्शंस गलत लिखने, क्योंकि मैंने 2% से 6% ज़्यादा कह दी है कैटेगरी वाइज। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट इज़ ओके, इंसान है, गलती हो ही सकते हैं, लेकिन मैंने कह दी है जिनके ठीक हुए हैं। बाय द वे, और ये मैं यहाँ पे अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी लेकर आई हूँ। आदर्श जो कैटेगरी मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी जो सोच विचार है और मैं जो मान के चलती हूँ, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, हर एक की कैटेगरी, हर एक सब्जेक्ट, हर एक इंसान की, हर एक चीज़ों की वैल्यू इक्वल है,
सभी लोगों की सब चीज़ों की ज़रूरत है। कम ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं ज़िंदगी में, सब कुछ चाहिए हमें। सभी कुछ इम्पॉर्टेंट है, सभी लोगों को समान इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए हर क्षेत्र में। बाय द वे दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। इस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने नहीं लाए हैं, हमने फर्स्ट पहली बार लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप लोगों को सपोर्ट करने, क्योंकि ये कट ऑफ आपको आने वाले जून 2026 में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, और ये आपको एक ओवरव्यू ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए आने वाले एग्जाम में अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से खुद को प्रिपेयर करने के लिए और एग्जाम में बैठने के लिए और क्रैक करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर टू गिव अस मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एनर्जी टू डू आवर नेक्स्ट वर्क और वर्क्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करके हमारे साथ जुड़ के हमें एनर्जी, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में हम और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद, सी यू सून।